Hello everyone, this is Ankita Datta Bajpai, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the second part of lecture number 3. So basically in this part we'll be discussing problems. Alright, so here's our first problem. Let's go through it. A light string of spring constant K is kept compressed between two blocks of masses M1 and M2 on a smooth horizontal surface. When released, the blocks acquire velocities in opposite directions. The spring loses contact with the blocks when it acquires natural length. If the spring was initially compressed through a distance x, find the final speeds of the two blocks. Okay, so let us call me this as m1 and this is m2. ठीक है, ये जो स्प्रिंग है इट इज कॉम्प्रेस्ड. कितना कंप्रेस किया गया है इसे इनिशियली? इट इज कॉम्प्रेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x. ऑलराइट, और जो ये फ्लोर है ये स्मूथ है यानी कि फ्रिक्शनलेस है. ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि ये जो स्प्रिंग है ये लाइट स्प्रिंग है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k. ठीक है, और कॉम्प्रेस्ड है बाय x and it is released. When released, the blocks acquire velocities in opposite directions. And the spring loses contact with blocks when it acquires natural length. यानी कि अभी तो ये spring जो है वो compressed है and it loses contact with blocks जब ये natural length पे आ जाता है. And M1 और M2 ये दोनों जो है they acquire velocities in the opposite direction. ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है. We now need to determine the final speeds of the two blocks. So let us consider both the blocks and the spring as my system. और जैसा कि हमें दिख रहा है that there is no external force in the horizontal direction. Horizontal direction में system पे कोई भी external force नहीं act कर रहा है. So we can conserve momentum in this horizontal direction of the system, right? So initially since the blocks were released from rest और हमारा जो spring है it is massless, तो फिर हमारा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0, राइट? एंड लेट अस से दैट once the spring loses contact from both the masses, they acquire speeds. जैसे क्वेश्चन में दे रखा है that they both acquire speeds in the opposite direction. So this is my m1, this is m2. तो इसने स्पीड acquire किया v2 in this direction towards right and m1 ने v1 speed attain किया towards left. And let me say that this is my positive I cap. All right. So what would be the final momentum of the system? Final momentum of the system. क्योंकि हमारा स्प्रिंग लाइट है तो उसका तो कोई मोमेंटम नहीं होगा. So basically we need to concentrate on these two blocks. All right. So final momentum of the system would be m2 v2. अगर आप वेक्टोरियली लिखना चाहे then it would be m2 v2 I cap plus m1 v1 minus I cap. All right, this would be the final momentum of the system. Correct? क्योंकि मैंने towards right वाले को positive I cap माना है और v1 जो है it is in the opposite direction, therefore minus I cap here. And since we can conserve momentum along the horizontal direction, since there is no external force acting on the system in horizontal direction, so we can conserve momentum, right, in this horizontal direction. So initial momentum of the system was 0, which is equal to m2 v2 I cap minus m1 v1 I cap. ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस कर दिया, सिंपल.
So this implies m1v1 is equal to m2v2, right? यहां से मुझे क्या पता चल रहा है that m2v2 minus m1v1 I cap is equal to 0, right? तो m2v2 has to be equal to m1v1. तो यहां से मुझे v2 क्या आ जाएगा, v2 would be equal to m1v1 अपॉन m2. तो ये एक रिजल्ट तो मुझे मिल गया, ठीक है. एंड सिंस देयर इज नो डिसिपेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर जो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की है वो कंजर्व्ड रहेगी. ऑलराइट, तो इन फॉर मैकेनिकल एनर्जी हम क्या क्या कंसिडर करेंगे. इनिशियली, लेट मी कॉल दिस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल would be equal to mechanical energy final. Initially the blocks were released from rest. तो blocks के पास किसी भी तरीके का काइनेटिक एनर्जी नहीं था. ऑल राइट, एंड जो हमारा स्प्रिंग था वो कंप्रेस्ड था थ्रू अ डिस्टेंस x. तो जो भी मैकेनिकल एनर्जी था सिस्टम के पास, इट इनिशियली इट वाज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो दिस वुड बी हाफ k x स्क्वायर, ठीक है. k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज ऑलरेडी गिवन. x भी दिया हुआ है कि हमारा जो स्प्रिंग है वो x कंप्रेस्ड था. So this would be equal to final mechanical energy. Final में क्या बोला था, that the block lose, जो spring है it loses contact with the block when it comes to its natural length. यानी कि the potential energy of the spring is zero finally, क्योंकि वो अपने natural length पर आ गया. And जो भी mechanical energy of the system है, it is of the form of the kinetic energy of the blocks. Therefore it would be half m1 v1 square plus half m2 v2 square. ऑलराइट, तो यहां से मुझे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा करके एक और इक्वेशन मिल गया. ऑलराइट, so we already have relation between v1 and v2 and here we have this equation. तो यहां पर v2 को रिप्लेस कर देते हैं in terms of v1. ऑलराइट, and let's solve it. So rest of the calculation is very very trivial. As you can see, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप सारा कैलकुलेशन किया है. v2 को मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई हैव ऑब्टेन्ड, m1 v1 by m2 एंड देन आई हैव सॉल्व्ड इट आउट. तो यहाँ से whenever and wherever required, guys please pause the screen and go through the calculation. ठीक है, तो यहाँ से I got v1 which is equal to km2 by m1 into m1 plus m2. And v2 के लिए we already had the relation v2 is equal to m1 by m2 into v1. तो मैंने यहाँ पर v1 का वैल्यू वापस से पुट कर दिया that I have obtained above, और यहाँ से I got the value for v2. और हमें यही निकालना था, we needed to determine the final speeds of the two blocks. ठीक है, चलो then let's come to the next question now. A block of mass m1 denoted by small m here, ठीक है, is connected to another block of mass m2 denoted by capital M. ये रहा. By a massless spring of spring constant k, the blocks are kept on a smooth horizontal plane. Smooth horizontal plane यानी कि ये जो surface है, ये जो horizontal surface है, ये frictionless है. Initially the blocks are at rest and the spring is unstretched when a constant force F starts acting on block of mass m2 to pull it. Find the maximum extension of the spring. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमेशा जब भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर बोर्ड पे भी जब भी आप किसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते, प्लीज लुक फॉर द कीवर्ड्स. क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं. दैट ये जो फ्लोर है ये स्मूथ है, सो दिस इज, हमें समझ में आ गया कि ये फ्रिक्शनलेस है. ऑलराइट, ये जो स्प्रिंग है ये मासलेस स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इज k. एंड इनिशियली ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है और स्प्रिंग भी जो है वो अनस्ट्रेच्ड है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स F starts acting on the block of mass m2. m2 जो है ये कैपिटल M वाला
मास है। ऑलराइट, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, so I am considering both the blocks and the spring to be my system. ठीक है, तो now इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? F towards right. So the center of mass or acceleration of the center of mass of the system would be what? Acceleration of center of mass of the system क्या हो जाएगा? A is equal to, if I'm talking about the magnitude here, F divided by M plus M towards right, है ना? So this would be the acceleration of the center of mass of the system. All right, the magnitude would be F by small m plus capital M. And क्योंकि the net external force on the system is towards right, acceleration of the center of mass of the system would also be towards right only. Now I would like to work from the frame of reference of the center of mass. ठीक है, मैं center of mass के respect में ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। ये आपको इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों ये चूज किया। ऑलराइट, सो विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऑलराइट, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है हमने ऑलरेडी निकाले, इट इज टुवर्ड्स राइट, एफ बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो जब मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, यानी कि मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गई हूँ, तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अब हम इस डायग्राम को बनाते हैं। ऑलराइट, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, मेरा जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास एक एक्सेलरेशन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जब मैं बात करूंगी, मुझे इन दोनों ब्लॉक्स पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, because the acceleration of center of mass is towards right as we discussed. तो इन दोनों ब्लॉक्स पर जो है मैं सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगी? टुवर्ड्स लेफ्ट. So what would be the magnitude of the pseudo force acting on small m वाला mass? It would be m into the acceleration of the center of mass. और कैपिटल m पर pseudo force किस डायरेक्शन में लगेगा? Towards left. And what would be the magnitude of the pseudo force? Capital M into acceleration of the center of mass. इस तरीके से हम pseudo force लगाते हैं, and इस capital M पर already हमारा एक force लग रहा था capital F, और small a which is the acceleration of the center of mass, इसका magnitude हमें पता है, which is equal to a by m plus capital M. All right, so remember students that we are talking with respect to center of mass. All right, अब अगर मैं small m का FBD बनाऊं, so the net external force acting on small m would be, let me call it F1, would be equal to m into a, जैसे कि हमने देखा है, and a का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, this would become mf by small m plus capital M. All right, and remember students, मैंने यहाँ पर kx नहीं लिया है, the reason being हमने अपना सिस्टम किसे डिक्लेयर किया है? स्मॉल m, कैपिटल M और अपने स्प्रिंग को। तो जो kx है, यानी कि जो स्प्रिंग फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स है। ऑल राइट, चलिए, और हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मुझे क्या पता चलता है? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल m. सिमिलरली लेट अस डिटरमिन द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल M. So let me say that F2 is the net external force acting on capital M, जिसे मैं अभी कैलकुलेट करूंगी, and this would be equal to F minus capital M A. So this would be F minus capital M. A का वैल्यू हमें पता है, it's already MF by small m plus capital M. तो इसे जब आप LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो F2 कितना आ जाएगा? MF by small m plus capital M. All right. तो देखने वाली बात ये है that external force acting on छोटा m कितना आया? कितने मैग्नीट्यूड का आया? mf by small m plus capital M, and the external force acting on capital M भी कितना आ गया हमारा?
mf by small m plus capital M. All right. And ये सारी बातें जो हैं, I'll repeat, it is with respect to center of mass. All right. So now let's just try to visualize कि center of mass के respect में हमें यहाँ पर हो क्या रहा है. All right. तो जब मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, यानी कि सेंटर ऑफ मास तो इस फ्रेम में मेरा एट रेस्ट रहेगा. ऑलराइट. और मुझे क्या लगेगा, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ गई हूँ, तो मुझे ये लगेगा जैसे कि हमने ये एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एम और कैपिटल एम हमने ऑलरेडी निकाल लिया है. और दोनों के ऊपर फोर्सेस का डायरेक्शन क्या लगेगा, स्मॉल एम पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट और कैपिटल एम पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट. ऑलराइट. तो मुझे ये लगेगा कि ये दोनों मासेस जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. ऑलराइट. एंड F1 और F2 इस सिस्टम का अगर हम बात करें, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, जीरो हो गया. Therefore, we can conserve momentum of the system, right? हम सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. इनिशियली हमारा जो सिस्टम है, इट वाज द ब्लॉक्स वेर एट रेस्ट इनिशियली. तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या हो गया, जीरो. ऑलराइट. और जैसा कि मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगी तब मुझे ये लगेगा कि ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं एंड एक इंस्टेंट के लिए वो रेस्ट पर आएंगे. ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो रेस्ट पर आएंगे और उस इंस्टेंट के बाद जो है ये दोनों ब्लॉक्स वापस अपने एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे. राइट. तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कब होगा, जब ये मैक्सिमम दूरी इन दोनों के बीच में रहेगी. ऑलराइट. और मैक्सिमम दूरी इन दोनों के बीच में कब रहेगी, जब ये दोनों एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट पर आएंगे. ऑलराइट. और जिस इंस्टेंट पर ये जो छोटा ब्लॉक एम है, स्मॉल एम वाला ब्लॉक है, रेस्ट पर आएगा, उसी इंस्टेंट पर ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक भी रेस्ट पर आएगा. ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स हमने जैसे कि डिस्कस कर लिया, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो किसी भी इंस्टेंट पर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड रिमेन कंजर्व्ड. राइट. इनिशियली द ब्लॉक्स वे रिलीज फ्रॉम रेस्ट, द ब्लॉक्स वेर एट रेस्ट. तो फिर इनिशियल मोमेंटम जो है वो जीरो है, तो किसी भी इंस्टेंट पर इसका नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो जीरो होना पड़ेगा. तो जिस इंस्टेंट पर ये छोटा वाला m वाला ब्लॉक जब रुकेगा, उसी इंस्टेंट पर इसको भी रुकना ही पड़ेगा, तभी जाकर के जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा उस इंस्टेंट पर वो जीरो होगा. ऑलराइट. सो वी कैन से दैट द ब्लॉक्स are moving in opposite direction and would come instantaneous rest पर at some instant. and जिस instant पर ये दोनों masses जो हैं instantaneously rest पर आएंगे, उस instant पर the extension of the spring will be maximum, क्योंकि उसके बाद ये दोनों blocks और एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे. उस instant के बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के towards आने लगेंगे. Alright. तो चलिए अब कैलकुलेशंस शुरू करते हैं. तो लेट अस से कि ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है वो x1 दूर गया टुवर्ड्स लेफ्ट एंड जाके रुक गया, और साइमल्टेनियसली ये जो कैपिटल एम वाला ब्लॉक है वो x2 दूर जाकर के रुक गया टुवर्ड्स राइट. ऑलराइट. तो नाउ इनिशियली इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और मैक्सिमम एक्सटेंशन पर भी इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, जीरो आ गया. और हमने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है दैट व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, देन वी कैन से दैट work done by the external forces would be equal to
द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी काम किया सिस्टम पर वो गायब तो नहीं हो जाएगा। और जैसे कि हमें दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं आया इन दोनों ब्लॉक्स के। तो जो भी हमने काम किया इस सिस्टम पर वो कहाँ जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, है ना। तो यहाँ पर हम उस इंस्टेंट का बात कर रहे हैं जब ये दोनों मासेस जो है एक इंस्टेंट के लिए साइमल्टेनियसली रेस्ट पर आ गए। तो ये जो स्मॉल m है वो x1 खिसक गया टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस इंस्टेंट पर ये जो कैपिटल M है x2 खिसक गया टुवर्ड्स राइट। सो L0 was the natural length of the spring, एंड अब जो है स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? L0 प्लस x1 प्लस x2। तो मेरा स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो गया? x1 प्लस x2, और हमें इसे ही डिटरमिन करना है। ऑलराइट, सो लेफ्ट वाले ब्लॉक पर फोर्स कितना लग रहा था वो हमने ऑलरेडी डिटरमिन कर रखा है। जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था इट वाज इक्वल टू mf बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ऑलराइट, सो व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ऑन स्मॉल m? फोर्स भी हमारा लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा था, ये जो ब्लॉक है वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट खिसका। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स वुड बी F1 x1 ऑन ब्लॉक स्मॉल m। और कैपिटल M पर वर्क डन क्या होगा? कैपिटल M पर भी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो टुवर्ड्स राइट लग रहा था, F2 फोर्स लग रहा था, और ये जो कैपिटल M है वो भी कितना खिसका? x2 खिसका टुवर्ड्स राइट। तो इसका भी जो वर्क डन है वो पॉजिटिव ही आएगा। सो दिस वुड बी प्लस F2 x2, एंड F1 और F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ गया था, तो कितना हो जाएगा ये? mf बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M x1 प्लस x2। So this is the work done by the external force। यहाँ पर मजेदार बात ये है कि F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है ऑन द सिस्टम। अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, F1 इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड F2 इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 0, बट इनका वर्क डन आ रहा है। ऑलराइट, सो जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि अगर काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 आएगा, then work done by the external force on the system would be equal to the change in potential energy, so uf minus ui। इनिशियली हमारा जो स्प्रिंग था वो अनस्ट्रेच था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग वुड बी 0, एंड फाइनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाएगा? हाफ के कितना स्ट्रेच हुआ हमारा स्प्रिंग? x1 प्लस x2, so the final potential energy of the spring will be x1 plus x हाफ के x1 plus x2 का स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब जो है हमारा कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा रह गया है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, दैट इज वी नीड टू डिटरमिन x1 plus x2। so x1 plus x2 would be equal to 2 small m f by m plus कैपिटल M, और यहाँ पर एक k भी आ जाएगा। So this is my final result. This is the maximum extension in the spring. Clear है?